Hello students, today in this video we are going to read a comic story written in the form of a picture story, and this contains stories mainly told through pictures. Okay, so the name of this story is Gopal and the Hilsa Fish. So let's look at the first picture. In the first picture, fishmongers sold nothing but Hilsa fish. Who are fishmongers? Fishmongers are those people who sell fish and other seafood. Okay, they are the businessmen of fish and other seafood. See, look at the fisherman. What he is saying? Come, buy, the price of हिल्सा is down today. अच्छा, आ जाओ सब लोग, आज हिल्सा का प्राइस कम है, खरीद लो. So he is trying to sell his product. Look at the second picture now. Householders could talk of nothing but हिल्सा fish. तो घरों में भी लोग सिर्फ हिल्सा fish के बारे में ही बात कर रहे हैं. Look at this woman. She is saying, how much did you pay for that हिल्सा? Okay, she is asking कि तुमने उस हिल्सा के लिए कितने पैसे दिए. This man is saying, you wouldn't believe it if I told you. अगर मैं बोल दूँ तो तुम believe नहीं करोगी. So they are talking about hilsa. In the market also, people are talking about hilsa fish. In the household also, only people are talking about hilsa fish. And look at the third picture. And in the palace too, the courtiers could discuss nothing but hilsa fish. In the palace is the place, is the building of kings and queens. Okay, big buildings. So in the palace also, महल में भी जो कोर्टियर्स है, कोर्टियर्स कौन होते हैं? जो राजा के कोर्ट में होते हैं, उनको एडवाइस देने के लिए जो उनके मंत्री होते हैं, वो लोग भी सिर्फ हिल्सा के बारे में बात कर रहे हैं. Look at this courtier. He is saying, Your Majesty, you should have seen the huge hilsa I cut. It was okay. So बोलता है कि Your Majesty, राजा को जब एड्रेस करते हैं इस तरह से एड्रेस करते हैं, Your Majesty बोल के बोलते हैं, Your Majesty, आपको देखना चाहिए था, मैंने कितना बड़ा हिल्सा फिश पकड़ा था, वो ऐसा था वैसा था, बोलने लगता है. Okay. Here in the next picture you can see these fishermen are catching hilsa fish, and everywhere it is the season of hilsa and everyone is talking, discussing about hilsa only. Okay, so the king in the next picture says, stop it. Okay, he is in a very angry mood. Look how he is punching on the bag, on the pillow, because he is very angry. और वो बोलते हैं बस बंद करो. You are a courtier or a fisherman. तो वो गुस्से से बोलते, तुम एक कोर्टियर हो कि एक फिशरमैन हो, मछली वाले हो क्या, हमेशा मछली के बारे में क्यों बात करते हो. Then what happens? Look at the next picture. The courtier felt silent with downcast eyes. Okay, तो वो कोर्टियर चुप हो गया, साइलेंट हो गया, and he had downcast eyes, आंखें झुका दिए. The king felt guilty. राजा को बुरा लगा कि मैंने एक कोर्टियर के ऊपर इतना क्यों चिल्लाया. And he had not committed any mistake. He was just talking about something. Then the king says, I'm sorry, I lost my temper. अरे माफ़ करना, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया. Losing your temper means गुस्सा आ जाना. It is the season for hilsa fish, and no one, not even Gopal, look at the next picture, not even Gopal can stop anyone from talking about hilsa fish. Not even for 5 minutes. ओके, राजा बोलते हैं अरे सॉरी, मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया, मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए था, लेकिन ये हिल्सा फिश का सीज़न है और सब लोग हिल्सा ही बात कर रहे हैं. कोई उनको इवन 5 मिनट के लिए भी हिल्सा के बारे में बात करने से रोक नहीं पा रहा है. इवन गोपाल भी नहीं रोक पा रहा है. तो उसी पिक्चर में देखो गोपाल क्या बोलता है. लुक एट दिस बाल्ड मैन. ओके, ही इज़ गोपाल. ओह, आई थिंक आई कुड, योर मैजेस्टी. अच्छा, मुझे लगता है मैं ये कर सकता हूँ, योर मैजेस्टी. आपने कहा कि मैं 5 मिनट के लिए भी लोगों को बात करने से नहीं रोक सकता हिल्सा फिश के बारे में, बट आई थिंक मैं ऐसा कर सकता हूँ. नाउ कम टू द नेक्स्ट पिक्चर. द किंग इज सेइंग, देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट. तो राजा क्या करते हैं, उनको चैलेंज देते हैं. अच्छा देखते, देन लेट मी सी, मुझे देखने दो. यू बाय अ ह्यूज हिल्सा, एक बड़ा सा हिल्सा
खरीदो, ह्यूज मीन्स बहुत बड़ा, एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस, और पैलेस में लेके आओ, पैलेस मीन्स महल, विदाउट एनी वन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट, बट रास्ते में कोई भी तुम्हें उसके बारे में एक वर्ड भी ना पूछे, ये हो सकता है। गोपाल क्या बोलता है, आई एक्सेप्ट द चैलेंज योर मैजेस्टी, मैं आपका चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ। सो कम टू द नेक्स्ट पिक्चर। यहाँ गोपाल क्या कर रहा है, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिनों के बाद, तुरंत नहीं, कुछ दिनों के बाद वो क्या करता है, पता नहीं क्या कर रहा है। उसकी वाइफ पीछे से आके बोल रही है, वाई इज़ योर फेस हाफ सेवन, तुम्हारा फेस हाफ सेव्ड क्यों है, आधे फेस में उसका दाढ़ी है, मूछ है, और बाकी आधा सेव्ड है। तो गोपाल क्या बोलता है, आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ फिश, मैं फिश खरीदने जाने वाला हूँ इसलिए ड्रेसअप हो रहा हूँ। देन लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, व्हाट द वुमन इज सेइंग, व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विथ ऐश, ओके। फिर उसकी वाइफ पूछती है, अरे तुम्हें क्या हो गया है, व्हाट्स द मैटर विथ यू, वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विथ ऐश, अपने चेहरे पे ऐश, ऐश मतलब राख, जब कोई चीज़ को जला देते हैं तो क्या बच जाता है, राख, दैट इज़ कॉल्ड ऐश, ओके। तुम अपने फेस पे ये राख क्यों लगा रहे हो, स्मियर मीन्स लगाना, ओके, केयरफुली नहीं लगाना, ऐसे ही बस केयरलेसली कोई भी चीज़ उठा के मार्क करना अपने फेस को। तो वाई आर यू स्मियरिंग योर सेल्फ विथ ऐश, तुम ये राख चेहरे पे क्यों लगा, तुम्हें क्या हो गया है, उसकी वाइफ पूछती है। तो गोपाल बोलता है, आई टोल्ड यू आई एम ड्रेसिंग अप टू बाय अ हिल्सा फिश, मैंने कहा ना तुम्हें, मैं हिल्सा फिश खरीदने के लिए ड्रेसअप हो रहा हूँ। फिर नेक्स्ट पिक्चर में देखो, गोपाल इज़ वॉकिंग आउट ऑफ द हाउस एंड हिज वाइफ इज़ कॉलिंग फ्रॉम बिहाइंड, क्या बोलती है उसकी वाइफ, लिसन टू मी प्लीज़, यू कांट पॉसिबली गो आउट इन दोज डिसग्रेसफुल रैक्स, व्हाट आर यू अप टू, ओके। उसकी वाइफ पीछे से चिल्ला रही है, कह रहे मेरी बात सुनो, ऐसे तुम बाहर नहीं जा सकते इन दोज डिसग्रेसफुल रैक्स, डिसग्रेसफुल मीन्स डिसरिस्पेक्टफुल, रैग मीन्स अ पीस ऑफ ओल्ड टॉर्न क्लॉथ, एक फटा पुराना कपड़ा, तुम ये फटे पुराने कपड़े पहन के इस हालत में बाहर नहीं जा सकते, रुको मेरी बात सुनो। तो गोपाल रुकता नहीं बल्कि ये बोलते हुए चले जाता है, हाउ मेनी टाइम्स मस्ट आई टेल यू वुमन, आई एम आउट टू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश, मैं तुम्हें कितनी बार बताऊं मुझे हिल्सा फिश खरीदने जाना है। तो वो चले जाता है ऐसे बोलते हुए। एंड लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, हिज वाइफ इज थिंकिंग, ओके, ही इज नॉट टेलिंग, शी इज नॉट saying it to anyone, she is thinking. Look at the speech bubble. Can you see any difference between the previous one and this one? Yes, the speech bubble is quite different. Okay, those round circles indicate that she is thinking this. It's happened to him. He's gone mad. क्या थी सोच रही है, हे भगवान इसे क्या हो गया, ये पागल हो गया ऐसा लगता है। Now come to the next picture. Gopal bought the hilsa fish and started walking towards the palace. तो गोपाल मार्केट गया, एक बड़ा सा हिल्सा फिश भी खरीदा और मार्केट की तरफ चलने लग गया। In the market, look at this child, what he is saying, mother, look at that man, isn't he comical? मम्मा उस आदमी को देखो कैसे दिख रहा है, ये बड़ा कॉमिकल नहीं दिख रहा है, कॉमिकल मीन्स अम्यूजिंग इन अ वेरी एब्सर्ड वे, कोई चीज़ जो देख के बड़ी हंसी आए बट वो बहुत सुंदर ना हो, बड़ा ही अजीब हो, ओके, दैट इज़ कॉल्ड कॉमिकल। ये आदमी कैसे दिख रहा है, बड़ा कॉमिकल है। नाउ गोपाल फिर चलते चलते आगे बढ़ता है। दिस मैन आर ऑल्सो टॉकिंग, ही इज़ होल्डिंग द हिल्सा फिश बट नो वन इज़ नोटिसिंग, दे आर टॉकिंग, ही मस्ट बी अ मैड मैन, ये तो पागल आदमी होगा। देन द नेक्स्ट वन इज सेइंग, हुश, आई थिंक ही इज़ अ मिस्टिक, मुझे लगता है ये कोई मिस्टिक है। मिस्टिक वो लोग होते हैं जो प्लेस टू प्लेस ट्रैवल करते हैं और जो कोई स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, ठीक है, मुझे लगता है ये कोई मिस्टिक होगा। फिर वो चलते चलते आ जाता है पैलेस के पास। व्हेन गोपाल रीच द कोर्ट, कोर्ट में जाके जब पहुंचता है, लुक एट दिस पिक्चर, द गार्ड्स आर गार्डिंग द वे, गार्ड्स क्या करते, रास्ता रोकते, पूछते व्हाट डू यू वांट, क्या है, क्या चाहिए। तो गोपाल तो पागल की तरह दिख रहा है, गार्ड्स उसे बाहर अंदर नहीं जाने दे सकते, उसको रोकते हैं, क्या चाहिए तुम्हें, पूछते हैं। गोपाल सेज, आई वॉन्ट टू सी द किंग, मुझे राजा से मिलना है। देन द गार्ड इज सेइंग, यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू, ओके, नहीं तुम राजा से नहीं मिल सकते, चलो जल्दी यहाँ से बाहर निकलो।
गोपाल बिगैन टू डांस एंड सिंग लाउडली। गोपाल जाता तो नहीं, पागलों की तरह गाना गाना नाचना शुरू कर देता है। इनसाइड द पैलेस, अब पैलेस के अंदर राजा बैठे हुए हैं। लुक एट द स्पीच बबल्स, दे आर कमिंग फ्रॉम आउटसाइड, राइट, मतलब ये आवाज़ें बाहर से आ रही है। द मैन इज क्रेजी, अरे ये तो पागल है। थ्रो हिम आउट एट वंस, इसे उठा के बाहर फेंक देते हैं। आई वॉन्ट टू सी द किंग, लेट मी इन, लेट मी इन। अब गोपाल चिल्ला रहे हैं, मुझे अंदर जाने दो, अंदर जाने दो, राजा से मिलना है। राजा ये सब अंदर से सुनते हैं कि अरे कौन है। देन ही कॉल्स द गार्ड, गार्ड को बुलाते हैं और क्या बोल रहे हैं किंग, ब्रिंग दैट मैन टू मी एट वंस। कौन आदमी है, मेरे पास बुला के लाओ जल्दी। येस योर मैजेस्टी, गार्ड बोलते हैं हाँ अभी लेके आते हैं। नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, इट्स अ पिक्चर ऑफ द कोर्ट। द किंग इज सिटिंग, ऑल द कोर्टियर्स आर प्रेजेंट। देन गोपाल एंटर्स। गोपाल वॉज ब्रॉट बिफोर द किंग, गोपाल को लाया जाता है राजा के सामने। तो एक कोर्टियर उसको पहचान गया, इट्स गोपाल, अरे ये तो गोपाल है, इसको क्या हो गया। देन लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर, ऑल द कोर्टियर्स आर थिंकिंग एंड टॉकिंग टू ईच अदर। द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, ये आदमी तो पागल हो गया, कैसा हुलिया बनाया है देखो। दे आर टॉकिंग, द अदर वन इज सेइंग आई थिंक इट्स वन ऑफ हिज क्रेजी जोक्स। ये गोपाल तो ऐसे पागलपंती करता रहता है, उसके एक क्रेजी जोक में से है ये, कुछ ना कुछ ये करेगा। देन राजा उससे पूछते ऑल राइट गोपाल, आउट विथ इट, ठीक है बस भी करो। वाई आर यू ड्रेस्ड अप इन दिस रिडिक्यूलस फैशन, तुम इस तरह से इतने रिडिक्यूलसली, रिडिक्यूलस मतलब समथिंग दैट कॉजेस लाफ्टर, कोई ऐसा चीज़ जिस पे हंसी आए। तो गोपाल का ड्रेसिंग अप सेंस ऐसा था कि हंसी आ रहा था सबको, सो दिस वॉज रिडिक्यूलस। तो ऐसे रिडिक्यूलस फैशन में तुम ड्रेसअप क्यों हुए हो, बस करो अब बताओ। देन गोपाल सेज योर मैजेस्टी यू सीम टू हैव फॉरगॉटन समथिंग, मुझे लगता है आप कुछ भूल रहे हो। राजा सोचते हैं फॉरगॉटन समथिंग, क्या भूल गया। देखो लुक एट दिस पिक्चर, राजा ऐसे सोचते हुए धीरे से बोलते हैं क्या भूल गया। देन गोपाल सेज स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन हिल्सा फिश टुडे। बड़ी अजीब बात है कि आज कोई हिल्सा फिश के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है बात करने में। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस एंड इन द कोर्ट नॉट अ सोल हैज स्पोकन अ वर्ड अबाउट हिल्सा फिश। मैं मार्केट से पैलेस तक आया, कोर्ट में भी पहुंच गया आके, किसी एक ने भी मुझे एक भी वर्ड हिल्सा फिश के बारे में नहीं पूछा। ओनली देन डिड द किंग रिमेंबर द चैलेंज ही हैड थ्रोन टू गोपाल, तभी राजा को याद आया कि उन्होंने गोपाल को एक चैलेंज दिया था। क्या करने, मार्केट से पैलेस तक, कोर्ट तक एक हिल्सा फिश लेके आने, और कोई उनको रास्ते में कुछ नहीं पूछेगा। ऑफ कोर्स उनको किसी ने कुछ नहीं पूछा बिकॉज एवरीवन वाज टू बिजी टॉकिंग अबाउट हिज अपीयरेंस। देन द किंग इज सेइंग हा हा हा, वेल गोपाल कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड द इम्पॉसिबल वंस अगेन। तुमने फिर से ऐसा एक इम्पॉसिबल टास्क कर दिखाया। एंड अचीव वर्ड का मतलब होता है सक्सेसफुली कोई चीज़ पा लेना, ओके तुमने ये अचीवमेंट कर दिखाया। नाउ कम टू द वर्किंग विद द टेक्स्ट पार्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो मोर टॉक अबाउट द हिल्सा फिश। राजा को हिल्सा फिश के बारे में और बातें नहीं चाहिए थी, क्यों, आपको आंसर लिखना है। नंबर 2, व्हाट डिड द किंग आस्क गोपाल टू डू टू प्रूव दैट ही वॉज क्लेवर। राजा ने गोपाल को क्या करने कहा ताकि ये प्रूव हो जाए कि वो क्लेवर है, बहुत चालाक है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट 3 थिंग्स डिड गोपाल डू बिफोर ही वेंट टू बाय हिज हिल्सा फिश। हिल्सा फिश खरीदने जाने से पहले गोपाल ने क्या 3 चीज़ें की, आपको ये आंसर्स अपने नोटबुक में लिखने। नंबर 4, हाउ डिड गोपाल गेट इनसाइड द पैलेस टू सी द किंग आफ्टर ही हैड बॉट द फिश। फिश खरीदने के बाद वो पैलेस तक कैसे पहुंचा, पैलेस के अंदर कैसे गया। Number 5, explain why no one seemed to be interested in talking about the hilsa fish which Gopal had bought. क्यों गोपाल के लाए हुए हिल्सा फिश के बारे में कोई बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था। Now the sixth question is true or false. This is very easy, you can do. The king lost his temper easily. Yes or no? Gopal was a madman. True or false? Gopal was a clever man. True or false? गोपाल वॉज टू पुअर टू अफोर्ड डिसेंट क्लॉथ। क्या गोपाल बहुत गरीब था इसलिए डिसेंट क्लॉथ नहीं पहन पाया। दिस इज ट्रू और फॉल्स, यू हैव टू राइट।
द किंग गॉट एंग्री when he was shown to be wrong. जब गोपाल ने प्रूव कर दिया कि राजा गलत थे और उसने उनका चैलेंज पूरा कर दिया तो राजा को गुस्सा आ गया. True or false? You have to write. Okay, in the next class we will discuss the working with language part. Till then, I want all of you to write these question answers in your notebook and contact me in case of any doubt. Thank you.